Good afternoon, students. Welcome to Saboni Dhara channel, and this is Saboni. Today, I'm going to start the another topic, which is already you might be aware about it little bit, but in detail, I'm going to give you. In the last lecture, we have completed all the significances of the management principles very thoroughly and very properly. So today we will going to see the another part of it. Our another part is theories of management, and it is very important to understand. So let's start. Theories of management का मतलब होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट बोला है, मैनेजमेंट थियरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका ये मतलब होता है कि थियरीज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है बिकॉज मैनेजर्स को, बिकॉज इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स एंड इट इज़ वन काइंड ऑफ अ गाइडेंस विच इज़ गिवन टू द managers for taking or doing the work within the company, within the organization, with the human resources in the sense like with the employees जिसके साथ वो काम करते हैं. So second one, theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means or to achieve the same. So theories का मतलब है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ताकि एम्प्लॉयज़ को असिस्ट कर सके, उनको असिस्टेंस दे सके इफ़ेक्टिवली, ताकि जो कोई भी प्रॉब्लम होता है या फेस करते हैं एम्प्लॉयज़, वो मैनेजर के साथ डिस्कस करे एंड मैनेजर एक सेटअप करे चीज़ों को इफ़ेक्टिवली और रिलेट करे. एंड इसी तरह से अगर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे एम्प्लॉयज़ एंड managers, so the business goal and implementations will happen in a very nice way. On the other hand, in the third point, they are mentioned that various management thinkers have introduced theories which are based on the different approaches. सो डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स, जैसे कि अलग अलग लोग होते हैं वैसे अलग अलग सोच होते हैं, विचार होते हैं, और वैसे ही अलग अलग थिंकर्स मैनेजमेंट के अपने अपने थियोरीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं अलग अप्रोचेस के साथ. वैसे ही अप्रोचेस के साथ जैसे कि आप मैनेजमेंट थिंकर्स लाइक फेडरिक विंस्लो टेलर, एल्टन मेयो एंड हेनरी फ्योल जैसे लोग, जिसको बोला जाता है मैनेजमेंट थिंकर्स, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मैनी थियरीज ऑफ मैनेजमेंट सो दैट ये सब लोगों में एप्लीकेबल बने, अप्लाई हो ऑल ओवर द यूनिवर्स. So these theories are applicable in all types of organization. It means that ये particular management theories applicable है सारे types of organization के साथ. ठीक है, भले वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट डजेंट मैटर, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द theories of management and it should be implemented in each and every kind of organization. Okay, I guess this much is understood by you all. Now this is the another one which is called as the sixth point, that is, with appropriate modification every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies. It means that with the appropriate modification every manager, हर एक modification के साथ हर एक मैनेजर ये सारे थियोरीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने इनोवेटिव टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ के साथ. ज़रूरी नहीं है कि अगर डिवीज़न ऑफ वर्क बोला है तो आप डिवीज़न ऑफ वर्क ही करेंगे, आप डिवीज़न ऑफ वर्क में सब डिवीज़न ऑफ वर्क भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ताकि आपका जो काम है वो कम समय में एंड एक्यूरेट हो, इफ़ेक्टिवली इंसान भी काम करे आपके अंडर में. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट to understand that a manager can use the principles of management, the theories of management, by implementing their own thoughts in their own techniques, their own strategies in that particular thing according to the given current situation.
Next, seventh point, it states that it means these old theories are the basis of modern management theories. So this theories का मतलब है ये सारे ऐसे theories है जो के बेस बनता है मॉडर्न मैनेजमेंट theories के. मतलब मैनेजमेंट थियरीज़ तो बहुत ही पुराना रहा है, लेकिन ये सबसे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है जहाँ पे मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी को क्या किया गया है, बेसिस बनाया गया है. एंड ड्यू टू द चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट, चेंजिंग इन द टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स एंड द पीपल्स एवरी डे, now and then, modern manager need to follow the modern rules and the principles of the management and management theories. Now the eighth one is organizations, workforce and society are facing some common problems such as centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problems, health problems, work life balance, accountability, etc. सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कफोर्स एंड सोसाइटी बहुत सारे चीज़ें फेस करता है, लाइक कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करता है, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है छोटे से छोटा डाउट, छोटे से छोटा परमिशन के लिए भी हमें वो पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास अप्रोच करना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं कि छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे आई हैव अ कंपनी विच इज़ सेटअप इन वसई, और क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा चला इसीलिए मैंने विरार में भी और नालासोपारा में भी ओपन किया. ठीक है, अभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी उसको बोला जाता है बिकॉज आई एम द हेड ऑफ दैट बिजनेस. तो मैं अपने स्टाफ को बोलूँगी हर एक छोटी से छोटी बात के लिए आप मुझे कॉल करेंगे. ठीक है, सो 3 ब्रांचेस में से मुझे कॉल आता है हर एक छोटी बात के लेके. सो दैट इज़ व्हाट कॉल सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. इसमें ये चीज़ होता है, ये क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक बार मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी वो पर्टिकुलर टाइम में. सेकेंडली, इससे और एक भी चीज़ होता है कि दैट इज़ जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो आपके स्टाफ है, वो डिसीजन ले नहीं पाएंगे पर्टिकुलर टाइम पे, एंड डिसीजन कभी कभी राइट टाइम पे ही लेना चाहिए. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पीरियड ऑफ टाइम, दैट करंट टाइम, कि उसमें अगर आपने टाइम नहीं लिया और आप जस्ट वेट कर रहे हो, आपके मैनेजर आने की देर है, आप अपने बॉस का वेट कर रहे हो कि वो आएंगे, मैं पूछूंगी या मैं पूछूंगा तब जाके मुझे बताएंगे कि हाँ ना, वॉट एवर. सो इट इज़, सो दैट इज़ वॉट कॉल सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ लो मोटिवेशन. हाँ, ऑफ कोर्स लो मोटिवेशन में सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ बहुत बुरा भला बोलती रहती हूँ, मेरा काम नहीं होता तो बोलती रहती हूँ तुम लोग को आता नहीं है काम, टेक्निक्स नहीं पता, तुम्हारे वजह से मुझे इतना लॉस हुआ, ये हुआ वो हुआ. अगर मैं ये 24 घंटे बोलती रहूँगी उन लोग के सामने तो उनको क्या हो जाएगा, लो मोटिवेशन हो जाएगा. मतलब वो दे विल नॉट बी मोटिवेटेड बाय मी, बट दे विल अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ ओनली कि ये एनवायरनमेंट में काम नहीं किया जाएगा, और इसी के चलते एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो जाएंगे. मतलब जैसे पार्शियलिटी, देन पार्शियल हो जाना किसी के तौर से, कास्टिज़म्स फॉलो करना कि नहीं ये तो मेरा जात वाला है, नहीं ये तो मेरा कास्ट वाला है. सो ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं. एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का मतलब है फेवर रखना सामने से, जैसे वन काइंड ऑफ लाइक ये तो हमेशा मुझे चिल्ला की बात करता है मेरा बॉस, मुझसे कभी भी जितना भी करो कम ही लगता है. सो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, दिल में आता है, वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम, क्योंकि सामने वाले ने उतना अच्छी तरह से बिहेव किया ही नहीं है कि मैं कुछ पॉजिटिव बोलूँ. सो दैट इज़ वाई अ मैनेजर नीड टू बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक. इट मीन्स दैट ही हैज़ टू बी पॉजिटिव इन नेचर विथ ईच एंड एवरी पर्सन whom he is working with, and ताकि उन लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें एम्प्लॉयज़, एंड साथ ही साथ में उनको सपोर्ट करें, बॉस को सपोर्ट करें, मैनेजर को सपोर्ट करें, उनके डिसीजन को सपोर्ट करें. नेक्स्ट वन, हेल्थ प्रॉब्लम, वर्क लाइफ बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा.
हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब है नॉर्मली फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे। देन वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है वर्क एंड लाइफ, इसका मतलब है वर्किंग प्लेस का एक्सपीरियंस एंड अपने पर्सनल लाइफ का बैलेंस। बहुत सारे जनों को नहीं होता ये संभालना, मतलब यहाँ पे करने जाओ तो वो छूट जाता है। अगर आप ज़्यादा डेडिकेटिवली वर्क करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका पर्सनल लाइफ पिस्ड ऑफ हो जाता है। और अगर आप पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंसेस देते हो तो आपका वर्क प्लेस जो है वो क्या हो जाता है, वर्क लाइफ क्या हो जाता है, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। बिकॉज दोनों का बैलेंस करना इज़ अ वेरी बिग डील। सो ओवर देयर दे नीड टू फोकस ऑन दैट। सो ये भी एक बड़ा सा इशू है जो सबके सब फेस करते हैं। मैंने भी फेस किया था एट द इनिशियल पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब। But nowadays I came to know what the things where I have to give the importances and where we have to take it easily and where we have to do the work afterwards. So ये सारी चीज़ें अपने में आ जाता है according to the experiences, and अपने ऊपर ही ये सारी चीज़ें होते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हो। And I would always prefer to be very much very much बिज़ी इन माई लाइफ। मुझे बिज़ी रहने में बहुत मज़ा आता है। सो आई एम वेरी मच पॉजिटिव थिंकिंग ऑल्सो, लाइक मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती हूँ। ऑलवेज़ पॉजिटिव थाट्स मेरे दिमाग में रहते हैं। सामने से अगर कोई नेगेटिव बोल के भी जाएगा तो मैं उसको हंस के उड़ा देती हूँ। एंड आई यूज़ टू टेक ऑल द डिसीजंस वेरी पॉजिटिवली। ऐसे नहीं बोलूँगी आई एम द परफेक्ट मैन, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि ताकि ये सारी चीज़ें हो। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जैसे फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी। ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो इसका सारे प्रॉब्लम्स का एक ही उपाय है, अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना। अपने लाइफ को भी आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब भी आप साउंड डिसीजन लेंगे, जब भी आप कंसंट्रेशन करेंगे आप अपने ऊपर, तब जाके आप you will be successful in your life. No worries on that. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेनियरी बनना है, आपको बिलियंस में कमाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। You can work with thousands also, with lakhs also, but you know what the thing is कि आपका मन, आपका माइंड दोनों भी, एंड सोल, माइंड, हार्ट एंड सोल, ये तीन चीज़ सेटिस्फाइड जब भी हो जाता है, it means that you just rock the things. So it is very very important to understand कि this is also one kind of a management, to manage your own self, to manage your own life, to give importances to yourself. सो यही सारी चीज़ें से ही ऑप्टिमिस्टिक नेचर बनता है लोगों का। और मेरा भी ये कहना है बच्चों तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग का 12th स्टैंडर्ड है एंड इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू प्लेस योर सेल्फ इन अ वेरी वेरी नाइस प्लेस। सो अगर आपको एसएससी में बहुत कम मिला भी है, नो वरीज़, आप बहुत अच्छा कर सकते हो एचएससी में। ऐसा ज़रूरी है ही नहीं कि आपको एसएससी में सिर्फ 35 मिला है या जस्ट पास हुए हो आप परसेंटेज लेके एंड आपको तो एचएससी बहुत डरावना लग रहा है। दिस इज़ ऑल नथिंग। you can do it with a positive attitude and you can work on it. It is very much essential to make yourself to manage in the studies. आपको स्टडीज़ किस तरह से करना है, अलग अलग ट्रिक्स देखते रहिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहिए। उसके अनुसार ही आपका जो डेवलपमेंट है आप खुद अपने आप से करेंगे। डेवलपमेंट किसी को आने की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। यू विल डेवलप योर सेल्फ, बट बिफोर डेवलपिंग योर सेल्फ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये जितने भी इश्यूज़ हम लोग ने पढ़े हैं 8 पॉइंट में, ये कोई भी इश्यूज़ फिर आपको छू भी नहीं पाएगा। Okay, so in our real life also management plays a very vital role, and here also I used to say my students that this will going to work if you will manage, and especially you need to manage your time.
टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच एसेंशियल इन लाइफ. अगर आप अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं सो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाते हैं. इनफैक्ट वर्क एंड लाइफ बैलेंस भी हो जाता है. सो अभी से अगर आप करना चालू करते हैं तो आफ्टर 5 years व्हेन यू विल गोइंग टू वर्क इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन अ कॉर्पोरेट पीपल्स with the corporate peoples over there, you will find ke no, there is no problem in keeping yourself to be busy in the work and as well as to give the time and precious time to spend with your friends and families. So that is also important. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट 9, दैट इज़ थियरीज ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली provide solution in such issues to the management people. So yes, of course I do agree with this that theories of management बहुत ही अच्छी तरह से solution देता है. and ये जो भी issues हम लोग ने 8 point में पढ़ा है वो सारे issues को clear करता है just because of the theories of management के साथ. so इसके साथ साथ हम लोग ने थियरीज़ ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है इन डिटेल में. नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक which is called Henry Fayol Administrative Theory of Management. It means he is called as the father of management. He was one of the management thinkers who has developed 14 different kinds of principles which is universally acceptable and accepted by each and every person at any situation. So आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं and we should always respect this kind of management thinkers because they have did some remarkable work in their life, and because of that, because of their guidance, we are here to guide ourselves. चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट. Henry Fayol, Professor Henry Fayol, he took birth at 1841 and died on 1925. He was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. So he was a leading industrialist as well as a very successful manager. ओके. सो आप अभी बोलेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है तो फिर मैनेजर कैसे बन गया. इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स ही वॉज द मेन in industries and he was act as a manager, and a manager means a leadership, a quality of leadership which we all need to focus in our own company, in our own industries to for the successful of our industry. So he was focusing on that. He started his career as a mining engineer. So before he started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of the chief managing director, and then he just gain up his position as a chief managing director because of his work. After conducting many experiments and observations in the organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration. So what does it says? It's saying about after experiments, many experiments and many observation which he has done in his life, in the organization, within the people and with the people. So he has proposed 14 different principles which is explained in his book, that is General and Industrial Administration. It is the book which is written by him, and in this particular book he has written about the 14 principles. Next one, due to his contribution in development of managerial thoughts, he is called as the father of modern management. Because of his in-deep contribution towards the managerial thoughts and for the development of the management, he is called as a father of modern management.
Fayol suggested 14 principles of management. So he always suggested 14 principles, 14 laws of management which is applicable universally by everyone any corner of the world. These management serves as a guide for decision making and management actions. So this all statements gives us, serves us as a guidance for taking or by doing decision making and management actions in our own life. So this is what they are talking about, the theory of management, the father of management. He is called as a Henry Fayol, who have introduced 14 principles of management which is universally accepted by everyone, by every corner of the world. So these all are the 14 principles which we will going to see in the next lecture. Thank you so much, students, for your precious time, and don't forget to comment your views on my videos. Your doubts also welcomed. I will going to welcome your doubts as well as your suggestions, as well as if you really like my videos, please do comment on the comment box, like my videos, subscribe my channel. Thank you so much for your precious time. Have a nice day. Goodbye.